بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام صاحب کا ایسا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، اسی لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا چاہتا تھا اور امام صاحب کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلانا عزت سمجھنے لگے، اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی، تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ اپنے پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا، تو اس عورت کے شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اسی لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو شاید امام صاحب نے ہی لیا ہے اور وہ ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا، یعنی دونوں میاں بیوی امام صاحب کے اوپر شک کرنے لگے کہ امام صاحب نے ہی ان پیسوں کو چرا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا پورا گھر چھان مارا، انہیں ان کے پیسے نہیں ملے۔ تو اس دن ان کے گھر میں صرف امام صاحب ہی تشریف لائے تھے دعوت کے لیے، تو یہ دونوں میاں بیوی امام صاحب کے اوپر ہی شک کر بیٹھے۔ تو دونوں میاں بیوی کو امام صاحب کے اوپر بڑا غصہ آیا اور وہ شخص کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی، مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا کہ وہ ہمارے ہی پیسے چرا کر لے گیا۔ پیارے دوستو، مگر ان دونوں میاں بیوی نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا، یعنی وہ امام صاحب کو نہ تو سلام کرتا نہ ہی امام صاحب سے ملتا جلتا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر جو دوسرا اگلا رمضان آیا تو اس رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی، کیونکہ گاؤں والے باری باری سے دعوت دیتے تھے۔ تو اس شخص نے جس کے پچھلی مرتبہ گھر سے پیسے چوری ہو چکے تھے، تو اس شخص نے بیتے رمضان کے واقعوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے۔ مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اسی لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں گے، اور اگر ہم ان کو نہیں بلائیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے کہ سارے گاؤں والے تو امام صاحب کی دعوت کر چکے ہیں، صرف ہمارا ہی گھر باقی رہ جائے گا، تو گاؤں میں بھی ہماری نام کی بدنامی ہو جائے گی۔ تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ہم امام صاحب کو معاف کر دیتے ہیں اور اس بار بھی ان کی دعوت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھئے۔
तो उस शख्स ने कहा कि पिछली मर्तबा मेरी बीवी दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रख कर भूल गई थी, जो हमारे बहुत ही ज़रूरी पैसे थे, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसीलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए। तो वो शख्स कहने लगा कि इमाम साहब, क्या वो पैसे आपने ही उठाए थे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली हुई थी और आपका पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर ना उड़ जाए, इसीलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब, क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस वाक़ये को यानी उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी हुई कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है जो हम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर उतारी है, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी है। और बेशक कुरान इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान शरीफ के अंदर हर बीमारी की, हर परेशानी की, हर बात का आपको जवाब मिल जाएगा, हर परेशानी का आपको जवाब मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक़या हम आपको यहाँ बताते हैं। एक औरत है, वो बयान करती है कि उसका शौहर उसको छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई, मगर वो वापस नहीं आया। जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची थी। जब मुझे मेरे शौहर की वापसी का यकीन ना रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस तरह बूढ़ा हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने जैसा नहीं था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया और फिर घर में भी खाने को कुछ नहीं था। दवाई के लिए तो पैसे तो दूर की ही बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा सा गया कि कौन है जो सुनता है जब वो उसको आवाज़ देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। अल्लाह की इस आयत ने मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा भरोसा और तवक्कुल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकात नमाज की नीयत बांधकर नफिल नमाज अदा की और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। बच्चे की तकलीफ की वजह से नमाज भी मुख्तसर सी पड़ी, मगर दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी, यानी 2 रकात पढ़ती और दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती, यानी बच्ची की पट्टी बदल देती। मैंने इस अमल को 4 से 5 बार दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ की चीट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस, मैं चलता हूँ, यानी मेरे पैसे लाइए, अब मैं चलता हूँ। और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई लाकर बच्ची को खिलाइएगा। तो हमारी वो बहन बताती है, मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में डॉक्टर बोला कि अगर फीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुफ्त में थोड़ी ही चेकअप होता है।
इस तरह हमें हैरानगी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसने किया। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं। इस पर डॉक्टर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा, ये सैयद साहब का ही घर है? तो उस औरत ने बताया, जी नहीं, उनका घर आगे वाली गली के नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर साहब खामोशी से चले गए। तो वो बहन बताती है, मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर पर आया और उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर दूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मेडिकल से दवाइयाँ खरीद लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कह कर गया कि अब आपको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया करूंगा। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे उससे मदद ले सकता है। तो हमेशा हमें अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करना है, भरोसा करना है, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ही सिर्फ इबादत के लायक है और वही है जो हमारी सुनता है और वही है जो हमें सब कुछ अता करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद ज़रूर करता है। हमारे लोग पहले किसी परेशानी में अगर मुब्तला भी हो जाते हैं तो वो लोग दुनियावी असबाब इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये मामूल होना चाहिए कि अगर हम पर कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह तबारक व तआला से मदद लें। छोटी से छोटी चीज़ हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। आज हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हैं, हम एक चीज़ खरीदने की ताकत भी रखते हैं। अगर हमारे जेब में पैसे पड़ कर है और हम ये ताकत रखते हैं कि हम वो चीज़ दुकान से जाकर ख़रीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके जेब में पैसे भी है, आप उसको ख़रीदने की ताकत भी रखते हैं और आप उसको ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगे कि या अल्लाह, ये चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे बेशक तू ही दे सकता है। फिर ये होने के बाद आप जाकर उस चीज़ को खरीद सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए। मुसलमान को हर वक्त दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ भी एक इबादत है और अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है जब उसका कोई बंदा उससे कुछ मांगता है, उससे दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह